So, in today's class, you know that we have already completed till number 10. So, today we will begin from question number 11. Now, I find that question number 11, 12 is already done in the class, but then also I'll explain you one sum and you'll solve the other one, okay? That is, let me explain you question number 11, okay? So, ध्यान से समझ सकते हो। In question number 11, you have to find out the value of an expression where you have sine 750 degree into cos 300 degree plus cos 1470 degree into sine of minus 1020 degree। मतलब हम लोग को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, सारे इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शंस को हम लोग अलग-अलग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। Now sin 750 degree है, you know that this angle is greater than 90 degree. So everyone tell me, if an angle of a trigonometric function is more than 90 degree, what are the steps? You know that we can solve in 3 steps. Step number 1, you have to express that angle in the form n into 90 plus minus 5. Second step, we determine the quadrant. Third step, we check whether n is odd or even, and accordingly we solve. Right? So if I follow these 3 steps, I can write 750 degree as 8 into 9 t, 8 into 90 degree plus 3030 degree, because 890 is how much? 720 degree. Now 720 degree में कितने ऐड करने से 750 degree आएगा? It is 30 degree. We can write 300 degree as 3 into 90 degree plus 30 degree, because 3 into 90 is 270. 270 plus 30 degree is 300 degree. Plus this is 1470. You know that if angle is very large and if you're not able to identify that what into 90 plus how much is that angle, you can divide. You know that you can follow the division method. You can divide and find out this part. So if I divide 90 by 1470 by 90, remainder is 30 degree we find. So we can write 1470 degree as 16 into 90 degree plus 3030 degree. All right, everyone. But we are finding that this last trigonometric function, which is sine of minus 1020 degree, ये नेगेटिव एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? Sin of minus theta is how much? Tell me everyone. What is sin of minus theta? Minus sin theta. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एंगल है, यहाँ नेगेटिव नहीं था, यहाँ नेगेटिव नहीं था, यहाँ नेगेटिव नहीं था, तो हम लोग ने डायरेक्ट एक्सप्रेस कर दिया n into 90 कि लास्ट वाले में एंगल नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस साइन 1020 डिग्री। हाँ, यहाँ पे हम लोग वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। डू यू रिमेंबर दैट शॉर्टकट? क्वाड्रेंट डिटरमाइन करने वाला, जब भी प्लस हो तो वो शॉर्टकट काम आ जाता है कि नहीं? तो हम वो शॉर्टकट अगर अप्लाई करें तो बताओ तो सबको, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? यस टेल मी। यस, कैसे 8 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो फिर जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0। एंड यू नो दैट रिमाइंडर प्लस 1 इज योर क्वाड्रेंट। ऑलराइट, रिमाइंडर वैल्यू प्लस 1 is your quadrant. So 8 by 4 is 0 and 0 plus 1 is 1. So first quadrant में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कि इवन है तो साइन रह जाएगा 30 डिग्री। सो इसका वैल्यू क्या है? प्लस साइन 30 डिग्री इसका। इसमें तुमको पता है कि ये वैल्यू लेस देन 4 है, तो जब भी लेस देन 4 होता है तो उसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? n में 1 ऐड कर सकते हैं टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। यू रिमेंबर दिस पार्ट? बट अगर वो 4 से ज्यादा हो तब हम डिवाइड करके रिमाइंडर में 1 ऐड करते हैं, राइट? बट यहाँ पे 3 है, तो बताओ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है बताना एक बार? पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, ये ऑड है तो कॉस चेंज हो जाएगा। चेंज किस में हो जाएगा? साइन में, एंड दिस विल बिकम 30 डिग्री।
keep it in bracket. Okay, next we have plus sign. इसके बाद ये 16 है, 16 है तो हम क्या करेंगे, 16 divided by 4, remainder is 0. 0 plus 1 is 1. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये इवन है तो cos ही रह जाएगा and 30 डिग्री भी है. All right, now plus into minus is minus, so I must write a minus here. I hope you all have understood. ये और ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्लस इनटू माइनस हम माइनस लिख सकते हैं, तो वो नेगेटिव पार्ट का झमेला हट गया. नेक्स्ट, अब 1020 इज आल्सो वी आर फाइंडिंग दैट 1020 भी बहुत बड़ा एंगल है, बट हम यहाँ पे एक बार में देख सकते हैं कि कितना इनटू 90 प्लस कितना करने से, मतलब n क्या होगा इनटू 90 प्लस हाउ मच टू बी एडेड टू गेट 1020. कैन यू टेल मी एवरीवन? यस, 11 into 90 प्लस 30 degree. Clear everyone? Okay. Now we find out. तो अब यहाँ पे हम लोग sin 30 का वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ. प्लस है तो हमको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं. अगेन sin 30 इज हाफ माइनस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2. अब ये लास्ट वाला पार्ट, 11 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3. 3 + 1 is 4. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लोग ब्रैकेट देंगे. वो 11 ऑड है तो साइन विल चेंज टू cos एंड लास्ट में 30 डिग्री लिखेंगे. सो 1/2 into 1/2 is 1/4. अगेन माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया. cos 30 का वैल्यू वापस √3/2 आ गया. and just do the calculation. √3 into √3 is 3, 2 2 जा 4. if you take LCM 4/4 is 1. और एक और चीज देखो ध्यान से, अगर हम किसी पे भी वैल्यूज ना भी पुट किए रहते हैं, एक बार ध्यान से सब कोई नोट करना, अगर हम किसी भी फंक्शंस का वैल्यू नहीं भी पुट किए रहते तो भी आंसर आ जाता है. देखो कैसे, sin 30 into sin 30 is equal to sin squared 30 degree. All right everyone, sin 30 degree into sin 30 degree is sin squared 30 degree. ये माइनस है cos 30 degree. See why I am showing you a sin part, just to understand, explain you all that कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है, इसीलिए मैं शो कर रहा हूँ. जबकि प्लस जब होता है तो तुमको साइन देने का जरूरत नहीं होना चाहिए, देने का जरूरत नहीं होता है, बट देन फिर भी मैंने शो किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल कि देखो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से कब पॉजिटिव आ रहा है कब नेगेटिव आ रहा है, ये शो करने के. नेक्स्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट 11 into 90 plus 30 minus cos 30 डिग्री, बट यहाँ पे हमको ब्रैकेट देना चाहिए. सो वी हैव sin squared 30 डिग्री minus minus plus cos square 30 degree. So what is sin square theta plus cos square theta? Can you tell me? 1. So 1. 1. So ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू पुट करना, बिना वैल्यू पुट किए भी इसका आंसर आ गया. All right. So I want everyone to copy this and this both ways. Okay? इस स्टेप के बाद ये वाला मेथड, इस स्टेप के बाद ये वाला मेथड, दोनों मेथड कॉपी करो. और अगर किसी को समझ में नहीं है, you can definitely unmute yourself and ask. But let me just summarize this whole thing. See, if you see in this sum, what I have done is, तो उन्होंने अभी तक ये सारा चीज का इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज निकालना सीखा है. बस इस सम में इतना ही डिफरेंट है कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ, तो सबका अलग अलग वैल्यूज निकाल के वो सिंपलीफाई कर देता. ओके, सो यू कैन कॉपी डाउन दिस सम, unmute yourself, ask your doubts, and after completing this sum, everyone must try question number 12. Everyone must try question number 12 right now. सब कोई question number 12 को ट्राई करेंगे, बट पहले ये कॉपी करके और जो भी डाउट्स है वो डाउट को क्लियर करें. सो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट फॉर एवरीवन टू कंप्लीट दिस सम. सी व्हाट यू विल हैव टू डू इज एट द प्लेस ऑफ थीटा यू विल हैव टू जस्ट पुट थीटा इक्वल टू 150 डिग्री. ऑलराइट, इज इट 150? यस. अगर हम थीटा की जगह 150 लगाएंगे तो ये क्या होगा, 3 into 150 is 450 डिग्री. ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा 600 डिग्री. यहाँ पे भी 600, यहाँ पे 450. और उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, सारे फंक्शंस का अलग अलग वैल्यूज बस क्या करना है, निकालना. Is this clear everyone? So I'm just giving you 2 more minutes time. I want everyone to complete fast. अगर नहीं हुआ, I'll show this on the board. Hurry, concentrate here, okay? Listen here. You can just check your answer. I'm 100% sure that I believe everyone must have done. But इधर-उधर कहीं ना कहीं कुछ mistake हो गया होगा अगर आंसर नहीं आया होगा. So I want everyone to look here. Okay? I'm solving this. So the question is cos 3 theta minus 2 into cos 4 theta divided by sin 3 theta plus 2 into sin 4 theta. This is the question.
And what is the value of theta? The value of theta is 150 degree. So what does the question says? The question says that इस expression का हम लोग को value निकाल के दिखाओ. अगर थीटा का वैल्यू क्या है 150 डिग्री 150 डिग्री, तो बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां थीटा है वहां पे 150 डिग्री लगाएंगे. So 3 into 150 becomes 450 degree. This is cos 4 into 150 600 डिग्री. और अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि क्या तुम लोग को ये सारे वैल्यूज निकालने में दिक्कत होगा, आई एम 100% श्योर कि जिस हिसाब से उन्होंने देखा है, अगर तुम लोग होमवर्क बढ़िया से किया है तो कहीं किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बस फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ सिस्टमैटिक वे, वी आर गोइंग वेरी स्लो. और अगर देखा जाए तो cos 450 का वैल्यू क्या होगा? So we you know that 450 can be written as 4 into 90 plus 5 into 90 plus 0 degree we can say. All right, 5 into 90 plus 0 degree. 5 into 90 plus 0 degree का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है. 5 ऑड है तो cos साइन में कन्वर्ट कर दो. So answer is -0. You know that 0 is a neutral number. तुमको सिर्फ 0 लिखने से भी चलेगा. So इसका वैल्यू हो गया 0. बहुत लोग हमेशा ये बात पूछा भी था कि +0 है तो कौन से क्वाड्रेंट ले? तो see it is up to you. तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट लो या सेकंड क्वाड्रेंट. बट मेरे हिसाब से क्या, मतलब एक चीज फॉलो करो, इट विल बी बेटर. मतलब प्लस है तो ये बेटर है कि तुम नेक्स्ट वाला ही क्वाड्रेंट चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर मतलब उससे भी राइट होगा, इससे भी राइट होगा. क्लियर? सो आंसर इज 0. नेक्स्ट, cos 600 degree. So we find that cos 600 degree can be written as 6 into 90 plus 60 degree. 6 into 90 is 540 plus 60 is how much? 600 degree. Now 6 divided by 4 is 2. 2 is the remainder. 2 plus 1 3. Third quadrant में cos क्या होता है? नेगेटिव. इवन है तो cos रह जाएगा. And the value is how much? Half. Clear? तो हम इस जगह पे क्या लगा देंगे? half. सॉरी यानी -half. और याद रखना ये तुम लोगों का ये लिखने का तरीका, मतलब एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं क्लास 10 से, प्लीज इसको अवॉइड करना. एक बार ध्यान से सबको नोट करना, ये गलत तरीका होता है लिखने का. ठीक है? ये क्या है? 2 into है, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं. सो आई मस्ट गिव वन ब्रैकेट, बिकॉज़ बिना ब्रैकेट का पता है वो क्या, मतलब वो रीड किया जाता है, वो 2 माइनस, देखो 2 minus half, मतलब -2 minus half. तो इसीलिए ब्रैकेट देना. तो ब्रैकेट से क्लियर क्या होता है कि -2 को -half से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ऑलराइट, सो इट इज बेटर यू चेक दीस थिंग्स आल्सो. ये छोटा चीज भी मिस नहीं होना चाहिए. तो इट्स ऑनलाइन क्लास, आई कैन नॉट करेक्ट, बट मैं जो कॉपी थोड़ा बहुत चेक किया मैंने सभी कोई का, तुम लोग का होमवर्क, तो मैंने देखा ये सब मिस्टेक्स आ रहा है. तो ये सब चीजों को करेक्ट करना. एक और चीज, बहुत लोग जो ब्रैकेट यहाँ नहीं दे रहे, देखो प्लीज चेक योर कॉपी, ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे. दिस इज आल्सो नॉट द प्रॉपर वे. क्लियर? बिकॉज you are expressing 450 degrees in this form, you must give this in bracket. ये पूरा चीज को ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए. समझ में आया तो बात? ये सब चीजों को करेक्शन करना अगर तुमने गलती की है तो. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 450 डिग्री? कैन यू टेल मी? हरियर? 1. आई एम डायरेक्टली राइटिंग 1. मैं रिलाई कर रहा हूं, तुम लोग पे आंसर दे. बताओ अब sin 600 डिग्री का वैल्यू क्या है? अच्छा, ये मैं सॉल्व √3 -√3 होगा. 3 या -√3 देख लेते हैं. -√3 होगा. sin 600 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा sin 6 into 90 plus 60, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? नेगेटिव होता है. इवन है तो sin, और sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/, मतलब ये -√3/. ऑलराइट, जस्ट ओके. सो वी फाइंड दैट माइनस से माइनस इज प्लस, 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया. ये 1 है, प्लस इनटू माइनस इज माइनस, 2 कैंसिल हो गया, √3. सो आंसर इज 1/1 minus √3, बट इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी रैशनलाइज. ओके, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. a minus b into a plus b is a square minus b square. So we have 1 plus √3/1 minus 3, that is 1 plus √3/-2. So this is an answer. You can leave your answer here. Okay. Now, so after this we find that there are, now we move on to question number 13. तो मैं 13 का एक सम बता देता हूँ और बाकी फिर तुम लोग ट्राई करना. ठीक है? तो ध्यान से कर.
पहले एक बार ये कॉपी कर लो. Now I'll solve one sum. Okay, just note down from question number 13. 13 का मैं एक sum solve कर देता हूँ, फिर बाकी तुम लोग वो try करना. So everyone note down 13 का question number 2. 13 का 2 मैं कर रहा हूँ, 13 का 3 तुम लोग try करेंगे, ठीक है? ध्यान. This is a very simple question. So the question is tan of minus theta in the numerator, and in the denominator we have sin 540 degree plus theta. So this is the question. Everyone note down. So everyone is listening. सबसे पहले हमको इसको evaluate मतलब इसको simplify करना है. देखो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है simplify. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखो simplify. मतलब हमको इसको जितना हो सके इसको हमको simplest form में represent करना है. अब ध्यान रखो. सबसे पहले बताना सबको तुम लोग. What is tan of minus theta? Tell me. minus tan minus tan. Yes, it is minus tan theta. तो ये तो हो गया. अब ये 540 डिग्री प्लस थीटा है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट करेंगे n into 90 के फॉर्म में. क्लियर? तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें n into 90 के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे बताओ, तुम लोग बताओ. 6 into 90. into 90 degree plus theta. 6 into 90 डिग्री और प्लस थीटा तो ऑलरेडी है. ठीक है, तो इस बात का चिंता करना ही नहीं कि प्लस क्या होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज 6 into 90 प्लस थीटा? नाउ क्वाड्रेंट का पार्ट. तो क्वाड्रेंट का पार्ट तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा. 6 को 4 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर में 1 ऐड कर दो. तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताओ? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ मैंने पूछा? यस, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. इवन है तो साइन रह जाएगा थीटा. माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा tan थीटा बाय sin थीटा. अब इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, sin थीटा बाय cos थीटा into 1 by sin theta already है. देखो ये sin theta gets cancelled and what is 1 by cos theta? It can be written as sec theta. So this is the answer. मतलब हम लोगों ने इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया. ऑलराइट, नाउ सो दिस वन इज वेरी सिंपल. इतना कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं था. अब एक काम करो तुम लोग सब कोई, 13 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी तुम लोग सब कोई करेंगे. ओके, एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई 13 का क्वेश्चन नंबर 3. इस पे करना क्या है, एक बार कॉपी करने से पहले सुनना एक बार सबको. इस पे ध्यान दो. देखो यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा. तो बताओ तो एक बार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. तुम लोग को ये चीज क्लास 10 में भी पता है और अगर देखो तो वो रूल अप्लाई करके भी हम लोग कर सकते हैं. कौन सा रूल? n into 90 वाला. 90 के आगे कुछ नहीं मतलब 1. तो 1 into 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. ऑड है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में? sin 90 minus theta is cos theta. Similarly, everyone tell me, just मैं एक दो चीज में ओरली ऐसे बताता हूँ. ये sec है ना? हाँ, sec 180 minus theta क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ. सर sec theta. sec 180 minus theta. minus sec theta. minus sec theta. कैसे होगा minus sec theta? sec 180 डिग्री minus theta मतलब ये हो गया sec 2 into 90 minus theta. 2 into 90 minus थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें सेक क्या होता है? नेगेटिव. इवन है तो सेक रह जाएगा थीटा, तो माइनस सेक थीटा. ठीक है, प्लीज एक चीज नोट कर लेना सब कोई कि सेक ऑफ माइनस थीटा और माइनस सेक थीटा में बहुत फर्क है. ये दोनों अलग अलग चीज है. ये दोनों को एक मत समझ बैठना और दोनों को ये मत सोचना कि दोनों का रिजल्ट सेक थीटा होता है. नहीं, कब होता है? सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, नॉट माइनस इनटू सेक थीटा. ये अलग चीज है, ध्यान देना एक बार. एक काम करो सब कोई तुम लोग, ये वाले सम में नंबर 13 का 3 में करना क्या है तुम लोग को, सारा जितना भी इंडिविजुअल फंक्शंस है जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये और ये सबको अलग अलग सॉल्व करके और पहले वहां पे पुट लिख दो. पहले क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लाइन में सिंपलीफाई करके लिखो एंड देन ट्राई टू रिड्यूस इट. आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स टाइम. एवरीवन मस्ट ट्राई. आई एम ऑब्जर्विंग एवरीवन. कीप योर वीडियो ऑन और सबको ट्राई करो. बट उससे पहले ये वाला सम कॉपी करें. इसमें है कुछ भी कॉपी करने का, बट देन आल्सो यू मस्ट कॉपी. So everyone look here. Question number 3. So we have sine of 90 degree minus theta into sec 180 degree minus theta. We have sine of minus theta. We have sine 180 degree plus theta.
cot 360 degree minus theta and cosec 90 degree plus theta. So everyone just note down here. Everyone, I want everyone to just note down जो मैं कर रहा हूँ. सबसे पहला चीज sin 90 degree minus theta. Just now I'd explain you all कि sin 90 degree minus theta. You can think, I mean, solve anyway कि क्लास 10 वाला रूल की कॉम्प्लीमेंट्री वाला sin 90 minus theta is cos theta या फिर n into 90 वाला रूल लगा के भी तुम इसको देख सकते हो कोई भी तरीके से. So sin 90 minus theta is equal to cos theta. All right. What is sec 180 minus theta? Just now I showed you that I can write 180 as 2 into 90. So it is 2 into 90 minus theta मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, इवन है तो sec and theta लिख देना मतलब माइनस sec. Sin of minus theta is minus sin theta. Then sin 180 plus theta मतलब इसको हम 2 into 90 plus theta लिख सकते हैं. 2 into 90 plus theta means थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इवन है तो साइन रह जाएगा sin थीटा मतलब आंसर क्या है माइनस sin. ओके एवरीवन चेक दिस पार्ट कि कहां था तुम्हारा मतलब अगर कोई का आंसर मैच नहीं किए मतलब रॉन्ग आया तो क्या रॉन्ग है देखेंगे. cot 360 minus theta, cot 360 minus theta means 4 into 90 minus theta, that is 4 into 90 minus theta means fourth quadrant जिसमें cot क्या होता है नेगेटिव, इवन है तो cot रह जाएगा and just write out theta. So here minus cot theta and you must keep this in bracket. cosec 90 plus theta क्या होता है बताओ. sec theta होता है cosec 90 plus theta. cosec 90 plus theta मतलब 1 into 90 plus theta. सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है पॉजिटिव, ऑड है तो cosec sec में बदल जाए. ओके नाउ सी माइनस into माइनस इज प्लस, माइनस into माइनस इज प्लस मतलब अपने लोगों को अब नेगेटिव का कोई साइन का कोई क्या नहीं रखना बिकॉज़ माइनस into माइनस इज प्लस, माइनस into माइनस इज प्लस. या हम ऐसे भी देख सकते हैं ये पूरा कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा cos theta into sec theta divided by cot theta into sec theta. sec theta भी कैंसिल हो गई so we have cos theta by, we can write cot theta as cos theta by sin theta. cos भी कैंसिल हो गया so what is the answer? It is sin theta. Okay, so sin theta is the correct answer. No problem if you have made mistake here, that कुछ mistake अगर हो गया कोई दिक्कत नहीं, you can just correct this. So I want everyone to pay attention. See, if A comma B comma C are the angles of a triangle, okay, if these three angles are the angles of a triangle given A comma B comma C are the angles of a triangle. So can you tell me how A, B and C are related with each other? Can you tell me what is the relationship? Can you do A plus B plus C equal to 180. 180 और पाई I mean एक ही बात है. अगर हम A plus B plus C equals to 180 डिग्री लिखें या फिर हम पाई रेडियन लिखें एक ही बात हुआ कि नहीं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A plus B plus C equals to pi radian. I am keeping in terms of pi. एक ही बात है 180 डिग्री लिख के करो या पाई लिख के करो एकदम सेम है कोई डिफरेंस नहीं. नेक्स्ट अब एक बार ध्यान देना मुझे उसके अंदर तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. ठीक है देयर आर 3 क्वेश्चंस अंडर दिस. ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना अगर A plus B plus C is how much pi. So let me take the first question. Okay, so we have cos C on the left and on the right we have minus of cos A plus B. So let me take right hand side here. मैं यहाँ पे right hand side ले रहा हूँ. So RHS is minus cos of A plus B. ठीक है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है cos C. Now अगर मान लो A plus B plus C अगर पाई है इसको यूज कैसे करना है ध्यान रखना. अगर कहीं भी A plus B plus C तीनों एक साथ सम फॉर्म में दिख जाए, I repeat, अगर कहीं भी हम लोग को A plus B plus C तीनों एक साथ दिख जाए तो उसको क्या करना तुम लोग पाई से रिप्लेस कर देना. ठीक है अगर कहीं भी A plus B मिले सिर्फ A plus B तो उसको पाई माइनस C से रिप्लेस कर दो. ठीक है अगर मान लो कहीं A plus C दिखे तो पाई माइनस B से रिप्लेस कर दो. ओके
सो टेल मी एवरीवन, अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है, मुझे इसको रिड्यूस करके सिंपलीफाई करके ये प्रूव करना है cos c के टर्म्स में लाना है, तो कोई बता सकता है मैं a plus d को क्या लिखूंगा? बताओ। pi minus c. Very simple, it is pi minus c. Now everyone tell me कि pi minus c का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? बताओ। देखो पहला बात, लिसन फर्स्ट लेट मी टेल यू, अगर हम पाई के टर्म्स में रख के सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत आसान है। पाई है तो मुझे cos को cos रखना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर दैट? पाई के टर्म्स में सॉल्व करने का एडवांटेज क्या होता है कि फंक्शन चेंज नहीं होता है और एंगल को लिख दो, बस क्वाड्रेंट चेक कर लो। तो ऑड इनटू पाई, पाई का मतलब क्या हुआ? 1 इनटू पाई, तो 1 इनटू पाई मतलब ऑड पाई। ऑड पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? बताओ तो। Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? Negative. नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ऑलरेडी था और एक और नेगेटिव आ गया, तो माइनस माइनस प्लस cos c। तुमको अगर लगता है कि नहीं मुझे इसको डिग्री में रख के करना चाहिए तो उसको रफ में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस c का मतलब हो गया 180 डिग्री माइनस c का मतलब हो गया 2 into 90 minus c। 2 into 90 minus c का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। इवन है तो cos सेम ही चीज रहेगा, ये माइनस cos। एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है देखना एक बार, नोट करना सब कोई। सेकंड पार्ट इज मोर इजी, आई मीन इट्स इजियर देन द फर्स्ट वन, बट ये मैं तीनों एक बार सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है tan of b plus c by 2 is equal to cot of a by 2। ये हम लोग को शो करना है। हम क्या करेंगे देखना है। आई विल टेक विच साइड, कौन सा लेना चाहिए बताओ तो, कौन सा साइड? LHS या RHS बताओ। LHS लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा आई मीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये LHS है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। अब बताओ तो हम क्या करेंगे? चलो क्या बदलो, चलो b plus c को pi minus a सर b plus c को pi minus b plus c के जगह पे pi minus a रिप्लेस कर देंगे। b plus c के जगह पे pi minus a रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एंगल में होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। आई रिपीट, एंगल पार्ट में होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसको हम स्प्लिट करेंगे, pi by 2 minus a by 2। What is the meaning of pi by 2? Pi by 2 means 90 degree. So can anyone tell me what is tan 90 degree minus theta? Anyone? 90. Yes? Tan 90 minus theta क्या होता है? cot 90. Cot Very 90. simple. Cot नहीं, tan 90 minus theta is cot theta. Tan 90 minus theta is cot theta, not cot 90. There are many students, students they are telling cot 90. Cot 90 कैसे बोलता हूँ? tan 90 डिग्री माइनस थीटा में पूछ रहा हूँ कि cot tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आंसर है cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? a by 2। तो एक लाइन का मतलब बहुत ही सिंपल समझ है, एक दो लाइन। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चूज किया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पाई के टर्म्स में रख के इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चन जो कि नंबर 3 से स्टार्ट होगा। देखना पाई के टर्म्स में रख करके ज्यादा इजी रहेगा, बट अगर तुम उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे बहुत झमेला होता है। l into 90 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इतना क्यों हम लोग झमेला करेंगे? हम लोग को पता ही है क्या पता है, बताओ तो। ये रूल पता ही है सभी को, इक्वल प्लस माइनस पता ही है। पहले में क्या होता है बताओ तो? यहाँ पे क्या आता है? इवन पाई Plus theta. प्लस थीटा आता है। यहाँ पे क्या आता है? ऑड पाई, सॉरी Even इवन पाई minus माइनस थीटा। यहाँ पे क्या आता है? odd pi minus theta. और यहाँ पे क्या आता है? odd pi plus theta. तो हमको पता ही है जब हम तो क्यों हम लोग इतना लंबा तरीके से जाए, राइट? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है और ये तो काफी इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा। अच्छा, एक दो लाइन का सम है। सो एक बार फटाफट ये वाला सब की कॉपी करो, ये दो सम। एंड जो तीसरा सम है वो भी मैं बताता हूँ। थर्ड सम आई विल टीच यू एंड फोर्थ वन यू आर गोइंग टू ट्राई। ओके, सो एक बार ये दोनों कॉपी कर सकते हैं सबसे पहले। So everyone see the third question. And the third number is
Let me take left hand side. Left hand side is tan of, I'm writing here, okay, यहाँ पे space कम है, tan of b plus c plus tan of c plus a plus tan of a plus b divided by tan of pi minus a, tan of 2 pi minus b, tan of 3 pi minus c, and you have to show that it is equals to 1. So I want your attention here everyone. देखो अभी हम लोग कैसे रेडियल मेथड करके इसको कितना इजीली सॉल्व करता है, ध्यान रखना. I want your attention and I'll give you the opportunity to try one sum, that is number 4. So पहले ये वाला सम देखो, फिर नंबर 4 तुम लोग ट्राई करो. ओके, ध्यान. सबसे पहले हम लोग b plus c के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? टेल मी एवरीवन. b plus c के जगह पे pi minus, इसके जगह पे c plus a के जगह पे pi minus, यहाँ पे pi minus c. Now everyone listen. देखो जब भी एंगल, किसी भी फंक्शन का जो एंगल है वो रेडियन के टर्म्स में हो, उस फॉर्म में जो odd pi plus theta, odd pi minus theta, even pi plus theta, even pi minus theta, इस पे आपको एक चीज तो पता है कि आंसर tan आएगा a. अब बस मुझे देखना है कि साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा. तो पहले एक बार मैं सारा जगह पहले ये लिख लेता हूं, उसके बाद प्लस माइनस का सोचेंगे. अब बताओ मुझे ये क्या है? ऑड पाई. लिसन, ये ऑड पाई माइनस थीटा है, तो बताओ तो ऑड पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव. ये क्या इवन पाई माइनस थीटा है? इवन पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. ठीक है. ये क्या है? ऑड पाई माइनस थीटा. ऑड पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. कितना इजीली सॉल्व हुआ कि नहीं? देखो तो तुम लोग, अगर ये कांसेप्ट क्लियर होने से कितना इजीली सॉल्व हो रहा है. देखो अब सेम है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पहले लिख देंगे tan a प्लस tan b ब्रैकेट के अंदर प्लस tan c. और अगर तुम ध्यान से नोट करो तो सारा जगह ऑड पाई माइनस थीटा है. ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा. ऑड पाई माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है. ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एकदम सेम है. सेम है तो कैंसिल हो गया एंड आंसर इज 1. ठीक है, एकदम सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया एंड आंसर इज 1. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरा ये और ये पूरा ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, नाउ आई वांट एवरीवन टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 सेम वे. क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम तरीके से सॉल्व करना है और एक बार ट्राई करोगे फटाफट. पहले कॉपी करना फिर क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना. So I'm taking left hand side. So we have sine of b plus c, sine of c plus a, sine of a plus b. In the denominator we have sine of pi plus a, 3 pi plus b and 5 pi plus c. Let me first reduce the numerator part. We can write pi b plus c as pi minus a, pi minus b, and this is pi minus c. Now, देखो हर जगह एक चीज तो क्लियर है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन ए, साइन बी, साइन सी, तीनों जगह लिख दिया. अब देखो ऑड पाई माइनस थीटा, ये सब जगह ऑड पाई, 1 पाई मतलब ऑड पाई. ऑड पाई माइनस थीटा क्या होता है? ऑड पाई माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव. यहाँ पे ऑड पाई प्लस थीटा है तो ये ऑड पाई प्लस थीटा हर जगह, तीनों जगह. तो ऑड पाई प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन बी, माइनस साइन सी. देन वी हैव sin a plus sin b plus sin c by. Let us take minus sign common. If I take minus sign common, we will get sin a plus sin b plus sin c.
cancel हो गया and the answer is 1 by minus 1 which is minus 1. Is this clear to everyone? जिसका नहीं भी हुआ होगा I think clear. Pop it down now. If listen here number 15. In question number 15, if ABCD are the angles of a quadrilateral, so how ABCD will be related? Can you tell me? A plus B plus C plus D is equals to 360 degree. 360 or 2 pi. एक ही बात. So this is the sum you are going to try at home. 16 you are going to try at home. Now listen here everyone. 17 से लेके 20 तक अभी नहीं करना है. ये जो पार्ट है ना 17 से लेके 20 तक. देखो 17 से लेके 20 तक. ये पार्ट अभी नहीं करना है. ये कब करना है? ये एक्चुअली मैंने गलती से ये पोर्शन बीच में दे दिया है. ये करना है बाद में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे मूव करेंगे तब. एंड यू डोंट वरी, आई विल रिमेंबर कि क्या छोटा हुआ है एंड मैं खुद करूंगा. ठीक है. नाउ प्लीज चेक इन योर पीडीएफ वेदर यू हैव गॉट दिस इन योर पीडीएफ और नॉट. दिस पार्ट चेक वंस. No, sir. No, sir. Okay, so I'll send it today. तो सबसे सुनना, तुम लोग का होमवर्क क्या होगा? You all have to do homework from all the questions from number 11 till number 16 and number 21. ठीक है? मतलब बीच में तुम लोगों को 17 से लेके 20 तक 17, 18, 19, 20 नहीं करना. And after this gets over, I'll take one test. Normal class will keep going, or then we'll start compound angles in the next class. Okay, so this much for today, everyone. Submit your homework on time.